important organ that is of your liver. सबसे पहले we have the external features of the liver, क्योंकि liver में external features ही पूछे जाते हैं, what important. Okay, so here you have the diagram of the liver and there are two surfaces of the liver. Obviously liver की एक होगी that is anterior surface और एक पीछे होगी that is of posterior surface. So this is of your anterior surface of the liver, right? So in the anterior surface here you can see there are two ligaments are there. Okay, anteriorly. Okay, this ligament is called as ligament falciparum. Okay, this ligament is called as ligament falciparum, and this ligament falciparum divides the liver into right larger lobe and left lower lobe, या फिर smaller lobe, means two lobes. Okay, these are the two. This is the one ligament called as ligamentum. This is the one ligament called ligamentum falciparum, and this is called as a one ligament which is present at the inferior surface called as the ligamentum teres. Okay, so this ligament is called ligamentum teres. Okay, now we got अपने पास ये दो ligaments बन गए the anterior surface. Now let's move towards the posterior surface of the liver, because ये आपको लिखने these are the relations of the liver. ये आपको आपने लिखने पड़ते, ठीक है. Now we have the posterior surface. So this is posterior surface of the liver. Okay, so इस liver की posterior surface में you can see this is of your inferior vena cava. Okay, this is of your IVC here, inferior vena cava. This is of your gallbladder here, you can see. Now in between this inferior vena cava gallbladder हो गया, यहाँ पे ये जो लोब आप देख पा रहे हैं, this lobe formed here, इस लोब को हम कहते हैं कॉर्डेट लोब. क्या कहते हैं बच्चों? इस लोब को हम कॉर्डेट लोब कहते हैं. इस मस्त पोस्टीरियर सरफेस में, और एक लोब इस गॉल ब्लैडर के बाजू में तैयार होता है. दिस लोब इज कॉल्ड एज ये वाला. सो दिस लोब इज कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब. ठीक, ओके, देख मतलब दो लोब्स, एक लोब इंफीरियर वीना केवा के बाजू में कॉर्डेट लोब, सी स्टैंड्स फॉर कॉर्डेट, एंड एक लोब होता है गॉल ब्लैडर के बाजू में कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब. अब ये तो अपना स्टाइल नहीं है, तो बता दिया मैंने कि ऐसे ऐसे प्रेजेंट होते, लेकिन दिस इज नॉट अवर स्टाइल. दिस आवर स्टाइल इज टू एलाबोरेट थ्रू डायग्राम्स ना. ओके बच्चों, चल अब इस डायग्राम पे चलते हैं. ठीक है मास्टर, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे बच्चों आपको मिलेगी एक इंफीरियर वीना कावा. ओके, चलो बच्चों इसको थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, इसको कलर कर ले. ओके, हियर यू कैन सी दिस इज ऑफ योर inferior vena cava. Okay, this is of your inferior vena cava, and here on the inferior aspect of is your gallbladder. Okay, so this is of your gallbladder. Now on the posterior surface of the liver, here you can see the inferior vena cava, and यहाँ पे हमारे पास एक ligament present होता है on the posterior surface. That ligament is called as ligamentum venosus. This ligament is called as ligamentum venosus. Okay, और यही लिगामेंट है जो आपको पता है कि फीटल सर्कुलेशन में जब जो आपकी डक्टस वीनोसस है उसका रेमनेंट बनता है तो लिगामेंटम वीनोसस में वो कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस इज द लिगामेंटम वीनोसस. बच्चा, नाउ एट द इंफीरियर सरफेस देयर इज आल्सो ए लिगामेंट, यू नो, एट द इंफीरियर सरफेस. आपको पता है कि इंफीरियर सरफेस पर भी एक लिगामेंट होती है. दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम टेरेस या फिर लिगामेंटम टेरेस हेपाटिस, ऐसे भी इसका पूरा नाम है. ठीक है बच्चों. ओके मास्टर, ठीक. सो हियर यू कैन सी. अब देख, नाउ इन बिटवीन आपकी इंफीरियर वीना केवा और आपका लिगामेंटम वीनोसस, इनके बीच में आपका क्या बन गया? एक लोब बन गई या फिर एक खाच बन गई. यस, दिस लोब इज कॉल्ड एज अ कॉर्डेट लोब. यस, दिस इज कॉर्डेट लोब. ठीक है मास्टर, वेरी गुड बच्चों. ओके, नाउ देयर इज अनदर ए लोब व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द inferior aspect, because which is present in between the gallbladder and of your ligamentum teres hepatis. This lobe is also a quadrangular shaped structure, and this hence is called as quadrate lobe. Okay, so this is also quadrate lobe.
सो देख यहाँ पे ना ये कॉर्डेट लोब हो गया एंड क्वाड्रेट लोब हो गया, और इनके बीच में यहाँ पे here is the presence of the porta hepatis. That is a very important structure called the porta hepatis. देख ऑलवेज मैं जब पोटा हेपाटिस को याद करता हूँ तो पोटा हेपाटिस को कैसे याद करता हूँ, तो पोटा हेपाटिस स्टैंड्स फॉर एच एंड हेड्स द फॉर्मेशन ऑफ एच लाइक स्ट्रक्चर. So this is porta hepatis because porta hepatis is a present H. So जो H की दांडी होती है that is of your porta hepatis. ऐसे याद कर, ऊपर कॉर्डेट लोब है और नीचे काउडेट लोब है, that is a structure. समझा? सो दिस इज द एक्सटर्नल फीचर. जब एक्सटर्नल फीचर पूछे जाए तो ये सारे लिगामेंट्स को वहां पे लिख डाल. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑफ योर ब्लड सप्लाई. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड सप्लाई एक पूछे जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ब्लड सप्लाई दो आर्टरीज से यहाँ पे या फिर दो वेसल्स से होगा. सबसे पहले दैट्स ऑफ योर हिपैट है, मतलब लीवर है तो हिपैटिक आर्टरी होगी. ओके, सो ब्लड सप्लाई टू द लिवर इज डन बाय द हिपैटिक आर्टरी एंड सेकंड इज डन बाय पोर्टल वेन. ओके, सो सेकेंड डन बाई पोर्टल वेन. अब तू बोलेगा वेन है, नहीं. द पोर्टल वेन अकोमोडेट्स अबाउट 80%, द हेपाटिक आर्टरी अकोमोडेट 20% ऑफ ब्लड. मतलब क्या होता है, जो पोर्टल वेन होती है वो पोर्टल वेन पूरे इंटेस्टाइन का ब्लड कलेक्ट करती है और पूरे इंटेस्टाइन का ब्लड कलेक्ट करने के बाद वो लिवर में उसको डिपोजिट करते हैं. मतलब मेजर अमाउंट ऑफ द ब्लड इज कलेक्टेड बाई ऑफ योर पोर्टल वेन. समझा? सो दैट इज कलेक्टेड बाई द पोर्टल वेन एंड डिपोजिटेड टू द लिवर. ओके, सो हेंस यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछे जाते हैं, दैट इज मेजरली आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम एज वेल एज इन नीट पीजी एग्जाम और द पीजी एग्जाम्स कि द मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड इज कलेक्टेड एंड डिपोजिटेड बाय द वेसल name that is of your portal vein and hepatic artery इनमें, so that is your portal vein because portal vein deposit about 80% of the blood and this deposit 20% of the blood. Venous vein, hepatic vein. Okay, now ठीक है बच्चों, वीनस ड्रेनेज याद रख ले, ब्लड सप्लाई भी याद रख ले. नाउ द पेरिटोनियल रिलेशनशिप्स. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों. चल लिवर को ड्रॉ करता. ठीक है, चल सबसे पहला हाउ टू ड्रॉ लाइक. ओके, दिस इज लिवर. पेरिटोनियल रिलेशन स्टार्टिंग फ्रॉम एंटीरियर सरफेस. लेट्स start from anterior surface. Okay, now here you know कि peritoneal relationship means it is related with the peritoneum covering, right? Okay, so you know कि the liver is most of the portion of the liver is covered with the peritoneal. Correct. Liver is not retroperitoneal, that only one side is covered by the peritoneum or on the both side is covered by the peritoneum. No, liver majority of the portion of the liver is covered by the peritoneum. Okay, now there are some places, कुछ ऐसी जगह है लिवर में कि these are not covered by peritoneum. सिंपल, मतलब लिवर, यही तो पेरिटोनियल रिलेशन है कि लिवर का जितना जगह है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने जगह है वो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं. तो मुझे बता, जो जितने सारे स्ट्रक्चर है वो पेरिटोनियम से कवर्ड है, ये ध्यान रखेगा. या 4-5 स्ट्रक्चर है जो नहीं कवर्ड है, ये ध्यान रखेगा. हाँ, ये जो कवर्ड नहीं है वो याद रखेगा, तो ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू जो कवर्ड है. समझा? क्योंकि ये लिखा तो ज्यादा मार, ये लिखा तो कॉमन, ये तो पता ही है कि ये दैट इज द पॉइंट. ठीक. सो अब मैं बताऊंगा आपको पेरिटोनियल रिलेशन, इसको डिटेल्ड एस्पेक्ट में पढ़ाओ. ठीक है बच्चों, चल सबसे पहले हियर यू कैन सी, आपको पता है कि लिवर को एंटीरियरली डिवाइड करने का काम आपका एक लिगामेंट करती है. दैट लिगामेंट इज कॉल्ड लिगामेंटम. ओके, सो ये जो लिवर का एक लिगामेंट होती है, एंटीरियरली दिस लिगामेंट डिवाइड्स द लिवर इनटू 2 एस्पेक्ट. दिस कॉल्ड एज अ लिगामेंटम falciparum. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लिगामेंटम falciparum, नो डाउट. ओके मास्टर. ओके बच्चों, लेकिन देखिए ये जो लिगामेंटम falciparum है उससे दो एस्पेक्ट, मतलब एक लिगामेंट राइट साइड में जाता और एक लिगामेंट लेफ्ट साइड में मूव होता. एक लिगामेंट गया राइट साइड में. ओके, इसलिए इसका नाम गिरा कॉल्ड एज राइट कोरोनरी लिगामेंट. ओके,
The one ligament goes to the right aspect called as the right coronary ligament, and the one ligament goes to the left aspect called as a left triangular ligament. ठीक है मास्टर, जैसा तू बोले ठीक है बच्चों। अब ये तो पता चल गया, अब इसके पीछे का खेल ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे का खेल बहुत इंपॉर्टेंट। इसको बताने के लिए मुझे लिगामेंट सॉरी हाँ, इसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिवर को पलटना पड़ेगा। लिवर को पलटता हूँ, चल बच्चे। अब इसको बताने के लिए मुझे लिवर को पलटना पड़ेगा। ओके, सो हियर you see this is of your posterior surface of liver. Okay, now जैसे मैंने बताया कि ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अब ना अब देख, यहां से here you can see this is of your ligamentum falciparum। अब इसका छोटू सा एस्पेक्ट यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। So this is of your ligamentum falciparum, ठीक है, this is of your ligamentum falciparum। अब ये जो एस्पेक्ट बन गया, दिस इज बन गया लेफ्ट बन गया, एंड ये जो एस्पेक्ट बन गया ये राइट बन गया, क्योंकि हमने लिवर को पलटा दिया ना, एंटीरियर से पोस्टीरियर सरफेस कर दिया। अब ये जो आपकी लिगामेंटम फैल्सीपेरम है, ओके, दिस इज कॉल्ड लिगामेंटम फैल्सीपेरम। अब इससे राइट एस्पेक्ट में एक लिगामेंट गया, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड राइट कोरोनरी लिगामेंट। इसका नाम क्या है, राइट कोरोनरी लिगामेंट। अब ये लिगामेंट जाता कैसे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, सो देख, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गोष्ट है। ओके, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग गोष्ट है। देख बच्चे, हुआ क्या, ये जो लिगामेंट है अपना जहां से ओरिजिनेट हुआ, मतलब एंटीरियर सरफेस से पीछे आ गया ना, एंटीरियर सरफेस से पीछे आया, दैट इज ऑफ योर लिगामेंटम फैल्सीपेरम। ये राइट एस्पेक्ट में गया, दैट इज द फॉर्मेशन राइट कॉर्नर लिगामेंट। उस राइट कॉर्नरी की ये जो है, दैट इज ऑफ योर सुपेरियर बॉर्डर, राइट। सो दिस इज सुपेरियर बॉर्डर ऑफ राइट कॉर्नर लिगामेंट, दिस इज राइट बॉर्डर ऑफ coronary ligament. Okay, and this is inferior border. Okay, now okay बच्चे, ओके, ये तो हो गया ये स्ट्रक्चर्स। नाउ अब यहां से कौन, एक और एक लिगामेंट आपका गया था, एंड दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज, दैट लिगामेंट यहां लेफ्ट साइड में गया था, उसको हमने नाम दिया था लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। इस लिगामेंट को हमने नाम दिया था लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट। अब वो लिगामेंट इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। हियर यू कैन सी, हे देख, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। ओके, देखा। अब देख बच्चा, इसलिए इसको कहा लेफ्ट ट्रायंगल हमने, और फिर ये आगे जाके यहां पे इसको आर्टिकुलेट हो जाते हैं बच्चों। सो यहां पे ये आर्टिकुलेट होगा, and that turns around to form a structure called as porta hepatis, right? ठीक है, अब देख, ओके बच्चे, हियर यू कैन सी। नाउ अगर आपने देखा, सो दिस इज स्ट्रक्चर्स, ओके बच्चों, यहां तो समझ। नाउ हियर इज अ ग्रुप। अब देख, सो ये जो जगह बन गई क्या, ये राइट कॉर्नर लिगामेंट की वजह से ये जो जगह बन गई, ये वाली पूरी, दिस रीजन जहां पे पेरिटोनियम एब्सेंट रहता है, इस रीजन को कॉल्ड एज बेर एरिया ऑफ लिवर कहते हैं। दिस इज हाउ द बेर एरिया ऑफ लिवर फॉर्म्स। इसको बेर एरिया ऑफ लिवर कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पेरिटोनियम एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाजू में ही आपकी यहाँ पे इंफेरियर वीना केवा अटैच होते हैं, इसलिए इंफीरियर वीना केवा अटैचमेंट के लिए वहां पे ग्रूव प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली ना, देख फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ अटैचमेंट होने वाली है पेन की, ओके, इसलिए यहाँ पे ग्रूव फॉर्म हो गया, इट इज ग्रूव, दिस इज called as groove, like in inferior vena cava, because there is for the attachment of inferior vena cava there is a formation of groove, and that is called groove for inferior vena cava, obviously। और ये जो जहां पे groove
फॉर्म होता है इंफीरियर वीना केवा के अटैचमेंट के लिए उस जगह पेरिटोनियम एब्सेंट रहती। मतलब देख कितने रीजन्स हो गए पेरिटोनियम जहां एब्सेंट है। सबसे पहला बेयर एरिया ऑफ लिवर, सेकंड कॉर्ड्स ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना के, जैसे मैंने बताया था कि पेरिटोनियम पूरी जगह है, लेकिन कुछ गिने चुने जगह है जहां पे पेरिटोनियम एब्सेंट है, वही याद कर जहां पेरिटोनियम एब्सेंट है। ओके, सो ये एक हो गया, यहाँ पे बेयर एरिया ऑफ लिवर है ना। ये जो बन गया ना, ये राइट कोरोनरी लिगामेंट और ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ योर राइट कोरोनरी लिगामेंट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट आ गए। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक थिक लिगामेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया और इसको ही हमने नाम दिया था ऊपर कॉर्ड लिगामेंटम वीनोसस। बताया था ना अभी, इसको हमने क्या नाम दिया था, लिगामेंटम वीनोसस। और मैंने अभी बताया था कि लिगामेंटम वीनोसस और इंफीरियर वीना केवा, इनके बीच में एक लोब प्रेजेंट होता है, उस लोब को मैं क्वाड्रेट लोब कहूंगा। ठीक है बच्चों, समझा? वेरी गुड मास्टर। यस बच्चों, नाउ लेट्स मूव टू ऑफ योर इंफीरियर एस्पेक्ट। हियर ऑन द इंफीरियर एस्पेक्ट there is a groove for the attachment of your gallbladder. Yes, not groove, that is fossa. Okay, so here this fossa for gallbladder, because gallbladder is an organ या फिर it is an organ, so there is not a groove, क्योंकि groove ligament के लिए या फिर किसी आर्टरी के लिए, किसी वेन के लिए, किसी वेसल के लिए होता है, लेकिन फोसा एक ऑर्गन के लिए होता है, इसलिए दिस इज एन फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, मतलब जिसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। अब देख, ठीक है, और नीचे आपको पता है कि इंफीरियर एस्पेक्ट में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम टेरेस और लिगामेंटम टेरेस हेपाटस। ओके, यही मैंने बताया था आपको ऊपर वाले डायग्राम में कि इस लिगामेंट जो आपको इंफीरियर एस्पेक्ट में प्राप्त होगा दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंटम टेरेस। अब मुझे बता, जैसे मैंने बताया था कि इंफीरियर वीना केवा और लिगामेंटम वीनोसस, इनके बीच में एक लोब है कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब, और उसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर और आपका लिगामेंटम टेरेस, इसके बीच में एक लोब है कॉल्ड एज क्वाड्रेट लोब। यस, ये जो लोब है ना, दिस लोब which is formed on the inferior aspect, this lobe is called as a quadrate lobe. This lobe is called quadrate lobe. समझा? So this is the aspect. Okay. Now let's took the aspect where the peritoneum is absent. सबसे पहले we got is bare area of liver, एक ग्रूव हो गया। थर्ड, गॉल ब्लैडर का जो फोसा होता है जहां पे गॉल ब्लैडर अटैच होता है वहां पे पेरिटोनियम एब्सेंट होता है। थर्ड, ये जो लिगामेंटम वीनोसस है जहां पे आर्टिकुलेट होगा, मतलब देयर इज एन ग्रूव फॉर लिगामेंटम वीनोसस। ओके, मतलब ये रस्सी है, रस्सी जहां पे अटैच होगी वहां पे कुछ तो बनाना, दैट इज ग्रूव, वहां पे भी पेरिटोनियम एब्सेंट है। सो ये 5 जगह हो गए। देख, बी फॉर जैसे मैंने बी फॉर बेयर एरिया ऑफ लिवर, एफ फॉर फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, पी फॉर पी क्या आता? सो पी से कुछ तो आएगा, सो पी से पोटा हिपाटिस आएगा, मतलब जहां पे पोटा हिपाटिस है वहां पे पेरिटोनियम एब्सेंट है। जी फॉर ग्रूव फॉर लिगामेंट ऑफ वीनोसस, अभी बताया, और जी फॉर सेकंड ग्रूव कॉल्ड एज ग्रूव फॉर इंफीरियर वीना केवा। ये जो 5 जगह है, इस 5 जगह पे पेरिटोनियम एब्सेंट है, बाकी की सारी जगह लिवर पे पेरिटोनियम प्रेजेंट है। दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चा, समझा? और ये जो रहता है दिस इज ऑफ योर पोटा हेपाटिस। इस पोटा हेपाटिस में क्या रहता है? देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द आर्टरीज, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द वेन्स एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नर्व्स आल्सो, जहां पे कंबाइंड रहती है कि जहां पे पोटा एंटर करती है और दैट कम्स आउटसाइड। ओके, सो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट बच्चा। ओके, नाउ लिगामेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं क्वेश्चन आता है कि राइट लिगामेंट्स ऑफ द लिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली क्वेश्चन गिरता है कि जब एक एलएक्यू आता है तो उसमें 5 पॉइंट्स है, मतलब एलएक्यू में 5 पॉइंट्स है तो 1 पॉइंट इज कॉल्ड एज राइट द लिगामेंट्स ऑफ द लिवर, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखना कि लिगामेंटम फैल्सिफरम, लिगामेंटम टेरिस, ये नहीं लिखना। सो यू हैव टू क्लासिफाई लिगामेंट्स इनटू 2 एस्पेक्ट्स। सबसे पहला यू हैव द ट्रू लिगामेंट्स एज वेल, एंड सेकंड इज कॉल्ड एज द सेकंड लिगामेंट इज कॉल्ड एज false ligament.
ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख, फाल्स लिगामेंट मतलब क्या? फाल्स लिगामेंट्स आर द लिगामेंट्स विच आर नॉट द लिगामेंट्स। मतलब वो जो लिगामेंट्स होते हैं वो और कुछ नहीं कि पेरिटोनियम की फोल्ड लेती है, मतलब पेरिटोनियम फोल्ड हुआ और वहां पे अटैच हो गया। ओके, दैट इज ऑफ योर लिगामेंट। फास्ट लिगामेंट इज अ पेरिटोनियल फोल्ड। लेकिन जो ट्रू लिगामेंट होता है वो कहीं तो प्रेजेंट हुआ होता है बॉडी में। अब देख, हमारी बॉडी में मतलब जो लिवर में सिर्फ दो ही ट्रू लिगामेंट्स है। कितने? सिर्फ दो ही ट्रू लिगामेंट्स है, बाकी के ऑल आर दी फाल्स लिगामेंट। वो दो याद रखो, वो दो कौन से? दिस दो आर दी, सबसे पहला called as ligamentum venosus, because ligamentum venosus, it is an remnant of the umbilical vein. Yes, you have seen in the fetal circulation. fetal circulation की वीडियो में मैंने बताया था, remnants भी एक्सप्लेन किए थे कि जब umbilical जो अपनी umbilical वेन होती है वो जब नाहिसी हो जाती है, क्योंकि जो फीटस होता है वो जब अडल्ट कन्वर्ट हो जाता है तब उसका रेमनेंट कन्वर्जन लिगामेंटम विनोसस में होता है। और सेकंड होती है दैट इज ऑफ योर लिगामेंटम टेरिस। ठीक है बच्चों, these only these are the two ligaments, otherwise all these ligaments, right coronary, left triangular, ligamentum falciparum, all these are false ligament. ठीक है मास्टर? ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज ऑफ योर लोकेशन, दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअल पार्ट कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द लिवर। सो हियर you can see these are the 9 quadrants of the abdomen. Here you can see which starts from the stomach. Okay, now the stomach goes like this. So we know कि stomach जो majorly 4 lobes में present होता है। सबसे पहला, this is called as epigastrium. Umbilicus is the major aspect and the right lumbar is very little and hypochondrium. Okay, now the liver, ये वाला, now the liver is present like this. Okay, so the liver present like this. Okay, मतलब क्या होता है कि जो आपका लिवर है, ये लिवर आपका राइट, मतलब ये देख 3 रीजन कवर कर रहा, एक राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, दूसरा एपिगैस्ट्रियम और तीसरा है लिटिल रीजन ऑफ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। 3 रीजन्स कवर कर रहा, बट मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द लिवर इज कवर्ड in the right hypochondrium region. समझा? This is the main point and this is MCQ कि majority portion कौन सा layer cover करता है। So बच्चों, this is all about our liver. Okay, this is all about liver. इसके बाहर लिवर में क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन लिवर को एक बार ओवरव्यू देख लिया और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद पूरा लिवर क्लियरिटी हो गई होगी। ओके।